थक गए सर। थक नहीं गया, मैं लोकेशन देख रहा हूँ, ये काम घर के बगल में है। हाँ, तो भाई को इतना डिफरेंस मैंने आपको बोला था सोने तो दूंगा नहीं। तो जानबूझ के चला है। हाँ। अच्छा, मेरी नींद गायब हो गई। मैं तो 4:30 बजे मैं ही चले जाऊँ, फिर मैं आपको नहीं सोने दूंगा। 4:30 बज गए सर। अभी नहीं। आपके ये फ्रेश शो तक बच जाएंगे। हाँ, फिर वही मेरा काम ही है। यहाँ से तो मैं 10 बाल्टी पहुँचा दूँ आपके यहाँ, पूरा आपका वो भर दूँ क्या, लेकिन आपने कोई ड्रम ही नहीं रखा है। इसको कहते हैं जिंदगी। सर थोड़ा इधर देखना। Hi, I'm enjoying this in the midnight. इधर फेस पे अंधेरा आ रहा है। हाँ। This is real life of India. This is real life. वर्धा। Yeah, Varda, as well as India. एट द प्रेजेंट ऑफ वर्धा। Yes, yes. ये देखो, ये साइड से बकेट भरी नहीं सर अभी। नहीं, अभी इतनी उठेगी, ज़्यादा फिर वो भी 2 लोगों से भरना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आधी बाल्टी में 10 ले जाऊँ। यार दिखा दो ये शर्ट कैसी लग रही है मेरी, और वीडियो कैसा लग रहा है। ये शर्ट आप पर सूट नहीं हो रहा। लेकिन यही जब टाई लग जाती है ना कोट पे, तो बिजलियाँ गिरती है। चले सर। sure. दो लोग ऐसे जाना ना हमको। I'm enjoying. You might be laughing on me, but I am enjoying my life. This is life. अगर सब कुछ रेडीमेड मिल गया तो लाइफ। दिस इज अ रियल लाइफ। आपको पता है अभिषेक बच्चन डिप्रेशन में रहता है, पता है उसको क्या कमी है? हैं, जया बच्चन एमपी है, वो क्या नाम है, अमिताभ बच्चन ने हज़ारों करोड़ कमा के रखा है, ऐश्वर्या राय है। इवन देन ही गोज इनटू डिप्रेशन समटाइम्स। Come on, let's talk. Yeah, you can talk anything, any topic, any subject other than biology. That is my weakness. Other than biology. Biology मेरे को नहीं समझ आती और ना याद रहती। Why? Because there are so many medical terms involved in that. तो फिर आप 10th क्लास में 12th क्लास में बायोलॉजी में नहीं, आप बायोलॉजी में पास कैसे हुए? वो तो कोई भी हो जाएगा। आप कैसे पास? टेबल के नीचे से देखिए। नहीं, जो भी है 40-45%, दैट्स ऑल। उसके मार्क्स मेरे बिलो 50 थे। अच्छा, तो आप आज ये एग्री कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने कि आप बायोलॉजी में चीटिंग करके पास हुए? वो भी मानना तो मान लो, क्योंकि मैं बच्चों को हंसाने के लिए। आपका नाम सर? आई एम मनोज गुप्ता। कहाँ से? आई बिलोंग टू चेन्नई। आप वर्धा में क्या कर रहे हैं? Yeah, my in-laws are here. I came to serve my mother-in-law for a treatment. She got corona infected, and by chance that time I was in Nagpur. So my wife informed me that she has got fainted, and she told me to go there. I took a taxi and came here, and I admitted her. That is my mother-in-law in the hospital, Savangi Hospital. After then, Savangi Hospital people cheated us, and I'm going to file a suit on them. There may be very big people, owners may be very people, but I want justice. So that's why I'm staying here, and I have got some business here, like tuition business, construction business, and I have got people here, good people like you, like Mr. Raja. So very soon you will see we will be earning very good amount here, and we will be serving the people. And I have seen the education standard in Varda is very, very low. I don't know how
people are paying, parents are paying lakhs of rupees to the colleges, but that standard, what is required, what we have in South India, is not here. So I want to teach children at a cheaper rate so that middle class people and even poor people can come to me, and there is no doubt it is a business, we will earn, but we will not charge very high amount from them. And I am the person who can teach 7 subjects, that is physics, chemistry, mathematics, English, Hindi, civil engineering and reasoning, and I will teach from the point of view of job preparation. What is the meaning of reasoning, sir? Reasoning means general aptitude, where there is no subject involved. Some questions may be some tricky questions, but base is always mathematics. Some base may be of science also, but not knowledge wise, just a tricky question. Suppose there is a question like, some river is there and somebody is having 2 buckets. So somebody is asking, if one bucket is being filled up in 2 minutes, then how much time it will take to fill 2 buckets? So somebody will think and answer 4 minutes. No, it is 2 minutes, because one person can use both hands. This is tricky. This is reasoning. Suppose we give some arithmetic progression, 2, 5, 8, 11. So what will be the next term? It will be 14. So little bit mathematics is involved, but the question means second term is 3 numbers more than the first term. So it is called arithmetic progression. Okay. Sir, what is your name? Yeah, my name is Manoj Kumar Gupta. Okay. I'm BTech Civil from Aligarh Muslim University, and I was working as deputy manager in NSIC. Afterwards, I found my talent something different. I resigned the job, and I supported my wife who was frequently going to abroad, and I managed my son to grow. And afterwards, I came into the business, and after resigning the business, I saw tough time also, very tough time. Even I struggled for 100 rupees. That was the time, but now I am very comfortable. Sir, आप वर्धा में कैसा आए? Yes, I came for the treatment of my mother-in-law, but later on, with her blessings or with the God blessings, I got 2 or 3 businesses here. One is the construction, that is I'm going to get 88 lakhs rupees. हिंदी में बोलिए सर. Yeah, मेरे को 88 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले जा रहे हैं. The company name is DP Jain and Company Infrastructure Private Limited, because I am the civil engineer as well as I am the teacher. तो टीचिंग के लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द जॉब प्लेसमेंट, एंड वी विल ट्राई सम इंश्योरेंस ऑल्सो. सो टोटली वी विल डू 4 businesses here: construction, job placement, and tuitions and insurance. वर्धा आप आए क्यों? Yes, I came for treatment of my mother-in-law. किसके साथ आए? I came alone because I was going to Delhi. I was in the train. हिंदी. मैं दिल्ली जा रहा था, एंड वर्धा आने से पहले मेरी वाइफ का फ़ोन आया. उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मदर इन लॉ बेहोश हो गई और बाथरूम में पड़ी हैं और कोई उनको उठाने वाला नहीं है. सो यू प्लीज़ गेट डाउन एट वर्धा, एट नागपुर. दैट टाइम माई ट्रेन क्रॉस्ड वर्धा स्टेशन. सो आई टोल्ड विच इज़ द नियरेस्ट स्टेशन. तो उन्होंने बोला कि आप नागपुर में उतर जाइए. नागपुर से उतर के मैं यहाँ पहुँचा टैक्सी करके, और टाइमली उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और मेरी जान बच गई. और शायद उनकी ब्लेसिंग से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि यहाँ मेरे पास बिजनेस हो गया, इनकम का जरिया हो गया. और आपकी धर्मपत्नी कहाँ पर है? शी इज़ इन चेन्नई. हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में. वो चेन्नई में है इस समय, लेकिन उस समय अगले दिन वो आई. उन्होंने भी पूरा संभाला, उन्होंने घर को संभाला, और मैंने और मेरी सिस्टर इन ने हॉस्पिटल में संभाला. उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में साथ दिया, भागे दौड़ी करी, और बाद में हमने उनकी जान बचाई. आफ्टरवर्ड्स हमने उनको सही सलामत बॉम्बे भेज दिया. और इस चीज़ के लिए हम लोग 10 साल से ट्राई कर रहे थे, जब से हमारा मद्रास में बंगला बना है, कि आप यहाँ रहेंगी तो आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा. लेकिन आपका पूरा नाम बताइए. माय नेम इज़ मनोज कुमार गुप्ता. आपके फादर का नाम? श्री चंद्रशेखर गुप्ता. और आपकी मिसेस का नाम? श्री रश्मि उमरे. वो कहाँ से है? शी बिलोंग टू वर्धा. हिंदी में बोलिए सर. वो वर्धा से बिलोंग करती हैं, तिलक चौक वर्धा से. तो वहाँ पे राम मंदिर के पास उनका घर है, मतलब मेरी ससुराल है. और मैं 21 साल पहले शादी करके उनको चेन्नई ले गया था. उस समय वो बेरोजगार थी. शी वॉज अनएम्प्लॉयड. आज वो शी इज़ वेरी. अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? यस, आई एम इन सम लोकेलिटी नियर टू आरवी. हिंदी में बोलिए सर. मैं अभी आरवी नाका के पास किसी लोकेलिटी में हूँ,
बट एग्जैक्ट प्लेस मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैं फिजिकली उसका घर जानता हूँ मेरे दोस्त तो आपको तो इस वक्त अपनी ससुराल में होना चाहिए। नहीं, ससुराल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, शी इज़ सो सेल्फिश, उसकी इतनी सेल्फिश है। उसका क्या नाम है? शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा गुप्ता। तो वो इतनी सेल्फिश है कि उसने अपना काम निकलवाने के बाद मुझे उस घर में नहीं रहने दिया जिसमें मैंने इतनी मेहनत की थी, कंस्ट्रक्शन कराया था पिछले ही साल। लेकिन मैंने माइंड नहीं किया, क्योंकि इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं झगड़े नहीं चाहता था, और मैंने होटल में ही रहना ठीक समझा। बाद में जब मुझे खर्चे की प्रॉब्लम आई तो एक मिस्टर राजा मिले, राजा फारूकी, और वो वर्धा के लोकल पर्सन हैं, उनके कई घर हैं, तो उन्होंने एक अपने घर में शेल्टर दी। यस, दिस इज़ ट्रू, उन्होंने घर में शेल्टर दी। नो सर। हाँ, और बाद में मेरी वाइफ को अकल सिखा दी। और आपके ससुरे का नाम? श्री डी के उमरे, देवीलाल कुंजीलाल उमरे। आपकी सास का नाम? श्रीमती रेखा उमरे। अच्छा, आपके साथ कुछ सावंगी में एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनके साथ, हमारे साथ चीटिंग हुई थी, मेरे साथ नहीं हुई, वो मेरी वाइफ के साथ हुई है, क्योंकि आई वाज जस्ट सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। हिंदी में बोलिए सर। मैं बाहर से ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उनके संग क्या चीटिंग हुई है, क्या 420 हुई है, उसका मैं मुकदमा भी डालने वाला हूँ। ये 420 हुई है कि उन्होंने सावंगी हॉस्पिटल एडमिट किया, और ये सोच कर के वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे 10 लोगों ने बोला कि वो लोग सही नहीं है, वहाँ मत ले जाइए। इवन उन लोगों ने बोला जो सावंगी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बिकॉज दिस वीडियो कैन गो एनीवेयर। लेकिन वो आप नाम क्यों नहीं ले सकते उनका? अभी इसलिए ले सकता क्योंकि उनका नाम में उन्होंने मेरे को जानकारी दी है, तो उनका नाम मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हेल्प की है, उनकी नौकरी ख़राब हो जाएगी। तो बाद में जब हमने वहाँ देखा तो क्या चीटिंग हुई, हमको उस इंश्योरेंस को, विडाल इंश्योरेंस को, विडाल कंपनी का, जैसे ICICI प्रूडेंशियल है, LIC है, तो विडाल कंपनी के इंश्योरेंस को कहा गया कि ये हमारे यहाँ चलता है, वैलिड है, लेकिन अप्रूवल नहीं थी। 10 दिन गुजारे, लाखों की फ़ीस ली। बाद में क्या बोलते हैं, 10 दिन में आपसे कितनी फीस ली है सावंगी दवाखाने वालों ने? 2 से 2.5 लाख रुपए तक लिया है। लेकिन आपके पास रिसिप्ट है? सब कुछ है, लेकिन एक पॉइंट पे हम कमज़ोर हैं कि इस चीज़ का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले दिन ये कहा गया कि ये इंश्योरेंस यहाँ चलता है, और अगर नहीं चलता होता तो वो लोग अप्रूवल के लिए क्यों अप्लाई करते? जो कंपनी का इंश्योरेंस ही नहीं चल रहा उसके लिए अप्लाई क्यों करते? लेकिन ये कितना खर्चा हुआ ये एग्जैक्ट मेरी मिसेस को मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है, लेकिन शी इज़ अफ्रेड ऑफ दोज बिग। आपकी मिसेस का क्या नाम है? श्रीमती रश्मि उमरे। उनका मोबाइल नंबर बोलिए। 9176-055-662। मैं किसी से डरता नहीं, मेरी मिसेस डरती, वो डर के बारे में नाम नहीं बता रही, मैं नहीं डरता, मैं एकदम फ्री माइंड का आदमी हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी का। देखिए आज भी मैं इंटरव्यू आधी रात पे दे रहा हूँ, आप इसको नेट में डालिए, आप इसको इंटरनेट पे डालिए, आप इसको व्हाट्सअप कीजिए, आप व्हाट्सअप ग्रुप में डालिए, आप न्यूज़पेपर में दीजिए, आप TV चैनल, क्योंकि मैं इसमें सच्ची बात कर रहा हूँ। जहाँ मैं गलत होता हूँ मैं झुकता हूँ, मैं छोटी सी चीज़ पे भी माफ़ी मांगता तो हूँ। अब आप अपने 2.5 लाख रुपए कैसे निकालेंगे? मेरे नहीं है, वो मेरी वाइफ के हैं। अच्छा, तो आपकी वाइफ आपकी नहीं है? मेरी हैं, लेकिन वो कहलाएंगी कंप्लेनेंट, मतलब जो कंप्लेंट डाल रहा है। अभी वो कंप्लेंट डालने में डर रही है, मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने उनको क्या कहा है कि मुझको आप मुकदमा लड़ने के लिए और कंप्लेंट डालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, वो अभी आने की है। जिस दिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी देंगी उस दिन वो ये भी बताएंगी एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, वो 2.25 लाख भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे से वो 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में है। लेकिन उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद ही मैं मानूंगा कि वो कंप्लेंट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता, क्योंकि ये उनकी कंपनी का मामला है, उन्होंने पैसा भरा है। जब तक वो मुझे राइटिंग में नहीं उनकी कौन सी कंपनी है? HCL टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, उसमें विडाल इंश्योरेंस से सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कवर्ड है। तो हम 5 लोगों का, दैट इज़ मेरे सास ससुर, मेरा सास ससुर का नाम बताइए। मिस्टर DK उमरे इज़ माई फादर इन लॉ, ससुर हैं, और श्रीमती रेखा उमरे मेरी सास का नाम। ये 2 हो गए, और 3 लोग? मैं माइसेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, मेरी वाइफ रश्मि उमरे और मेरा बेटा सौम्य गुप्ता। हम 5 लोग 15 लाख में कवर्ड हैं। तो ये 2 से 2.5 लाख का इंश्योरेंस, क्या 10 लाख भी इंश्योरेंस कवरेज होता। तो अगर हमारी शिकायत ये है, उन्होंने पहले दिन बोल दिया होता कि ये इंश्योरेंस हमारे वैलिड नहीं है, तो हम दूसरे हॉस्पिटल में जाते और हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। तो ये जो भी नुकसान हुआ है, और अगर किसी तरह से मेरे वाइफ के ऑफिस से मिल गया तो हम सेटिस्फाइड हैं, नहीं मिला तो ये चीटिंग है, और मैं इसको
मामले को उजागर करूँगा और मैं न्याय पाके ही रहूँगा और मेरी वाइफ को न्याय आप इस मामले को कैसे उजागर करेंगे? ऐसे उजागर करेंगे। पहले मेरे वाइफ की परमिशन लूँगा राइटिंग में, उसके बाद में प्रेस में एडवर्टीजमेंट करूँगा। एक मुझे न्यूज़पेपर बताया किसी ने, साहसिक न्यूज़पेपर, जो इन लोगों के खिलाफ बोलने की ताकत रखता है और उसने पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं। ये एक मेरे खास दोस्त ने बताया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। ये एक मेरे ऑटो वाले ने बताया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा है कि आप बेधड़क उसको कर सकते हैं। फिर पुलिस के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले कोई सुनने को तैयार नहीं। फाइनली मेरे फादर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि आप एक सूट फाइल करिए, जो 15-20 हज़ार का खर्चा उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि खाली हमारा पैसा मिल जाए। हमारा मकसद ये भी है कि आगे किसी के साथ वो होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस के पास गया, उन्होंने कंप्लेंट लेने से ही मना कर दिया। कौन से थाने में गए थे? मैं गया इस थाने में जो बजर चौक पे है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये उस क्षेत्र में आता ही नहीं आता है। लेकिन किसी तो वहाँ जाने के बाद आपकी किससे बात हुई? वहाँ जाने के समय कोई थाना इंचार्ज थे, मुझे नाम उनका नहीं पता, क्योंकि जब कंप्लेंट ही नहीं ली गई तो मैं डिसअपॉइंट होकर लौट आया। फिर मैं एसपी ऑफिस में तो गया। उनके ऊपर कुछ नाम की लेबल रहता सर? हर पहले कि मेरा ध्यान भी गया था, लेकिन बाद में मैं तो चेहरा भी भूल गया। और उसके बाद में एसपी ऑफिस में भी गया था, वहाँ भी लोगों ने मुझे एसपी साहब से मिलने नहीं दिया। कौन लोगों ने मिलने नहीं दिया? जो बाहर लोग बैठते हैं, मुझे नाम तो आपने बाहर के लोगों का क्यों सुने? जो उनके चैम्बर के बाहर रहते हैं, मैं उनकी परमिशन के बिना कैसे अंदर जा सकता हूँ? इसलिए अब मैं कोर्ट के थ्रू जा रहा हूँ। मुझे हार भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है, लेकिन उन लोगों को मुझे सबक सिखाना है कि आप किसी और के साथ ना करें, और वो बहुतों के साथ करते होंगे, वो करते हैं, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं है। अब ये किसी भी न्यूज़ चैनल में डालिए उनके। तो ये सावंगी दवाखाना है किसका? ये बताया गया है कि ये है श्री दत्ता मेघे का। तो जो यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह हैं वो लोग उनसे डरते हैं और वो एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए वो कंप्लेंट ही नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे? हाँ, एक तरीका मेरे दिमाग में आया कि हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि ये सब करना टाइम वेस्ट है, इसलिए आप किसी एडवोकेट के पास जाइए। एंड वेरी सून मैं किसी एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं जा सकता अभी जब तक मेरी वाइफ राइटिंग में कंफर्म नहीं करेंगे। नहीं तो वो कल बोलेंगी कि जब मुझे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ के लिए मुझे उनको कन्विंस करना है। ये मेरे घर का मामला है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद आप देखिए व्हाट कैन आई डू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।